नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। बरनाला में दशहरा मेले में दो पक्षों में हुई खूनी झड़प, एक युवक की बेरहमी से की हत्या। फिरोजपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर 3 मेडिकल स्टोर किए सील, 8 लाख प्रतिबंधित गोलियां की बरामद। चंडीगढ़ पुलिस ने फर्जी करेंसी गिरोह का किया पर्दाफाश, 24 लाख रुपयों के नकली नोट किए बरामद। और अब हलचल विस्तार से। बरनाला में दशहरा देखने गई एक युवक की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान 27 वर्षीय हीरा सिंह पुत्र भोला सिंह निवासी गरचा रोड बरनाला के रूप में हुई है। मृतक हीरा सिंह के पिता भोला सिंह, पत्नी रीटा, माता हरबंस कौर, चाचा हरजीत सिंह और निर्मल सिंह ने बताया कि कल दशहरे के अवसर पर हीरा सिंह दर्शन करने गया था, लेकिन दशहरे में दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें उनके बेटे हीरा सिंह की बेवजह हत्या कर दी गई। उन्होंने बताया कि हीरा सिंह का किसी से कोई झगड़ा नहीं था। मृतक अपने पीछे 9 महीने की बेटी, पत्नी, माता और पिता को छोड़ गया। मृतक के परिजनों ने हत्यारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। हीरा सिंह की मौत के बाद मृतक नौजवान के परिजनों ने पंजाब सरकार से आर्थिक मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है, ताकि परिवार के बाकी सदस्य अपना गुजारा कर सके। डीएसपी सतबीर सिंह बैंस ने बताया कि परिजनों के बयानों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों को जल्द ही काबू किया जाएगा। नाम रीटा रानी है ਵੀਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਫਾਂਸੀ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਲਿਆਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ, ਕੌਣ ਇਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨੀਤੂ ਮੈਂ ਮੇਲੇ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 6 ਵੱਜ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਅਨੂਕ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਬੀ ਇਹਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆ। ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਬੀ ਇਹਦੇ ਕਿਰਚ ਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਬੱਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਲਾਤਾ। ਬੈਠਰ ਸੀ, ਬੈਠਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ। ਇਹ ਖੜੇ ਦੇ ਤੇ ਮੰਗਦੀ ਆ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਮਾਰੀਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੇਰੇ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ, 2 ਪੁੱਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, 1 ਬੇਟਾ 1 ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅਜੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ। ਮੰਗ ਜੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗਾਹ ਨਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 9:30 ਵਜੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਕ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ 9:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, 17 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਏਜ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਚਾ ਰੋਡ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 4-5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 3-4 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗਰਚਾ ਰੋਡ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ 25-27 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹਦੀ ਏਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਭ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਬੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਛੁਰੀਨੁਮਾ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਸਿਵ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੀ मौत हो गई। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ब्रॉड डेड आया ਸੀਗਾ। गांव लखो के बहराम में नशे के कारण एक ही दिन में हुई 3 मौतों के बाद पुलिस एक्शन में आ चुकी है। पुलिस ने गुरुवार को गांव लखो के बहराम के अलावा फिरोजपुर और अन्य स्थानों पर मेडिकल स्टोर पर जाकर चेकिंग की। इस दौरान शहर में एक होलसेल मेडिसिन शॉप के गोदाम और घर से 8,18,300 प्रतिबंधित गोलियां, 2,70,000 की नकदी और कैश काउंटिंग मशीन बरामद की। इसके अलावा तलवंडी भाई, जीरा मक्खू, घलखुर्द, ममदोट, गुरु हर सहाय में विभिन्न केमिस्ट शॉप पर जांच के दौरान 3 दुकानों पर रिकॉर्ड में त्रुटियां पाई जाने पर 3 मेडिकल स्टोर को सील किया गया है। एसएसपी भूपेंद्र सिंह सिद्धू ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मुल्तानी गेट स्थित खुराना मेडिसिन शॉप पर छापेमारी कर 8,18,300 प्रतिबंधित गोलियां, 2,70,000 की नकदी और कैश काउंटिंग मशीन बरामद की। सर सानू जो भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है सीक्रेट सोर्सिस तो चाहे पुलिस विभाग तो जो पता लगता है कि कोई भी बंदा नशे का कारोबार कर रहा है असीं तुरंत कार्रवाई करते हुए उत्ते अपनी टीम भेजते हैं काम करने वास्ते। कल मिति 2/10/25 ਨੂੰ पुलिस वालों सानू एक रिक्वेस्ट आई सी कि इत्थे मुल्तानी गेट के अंदर खुराना मैडिकल एजेंसी नाम की फर्म है जिहड़ी कि भारी मात्रा में नशीलियां दवाइयां का काम करती है तो वो अगेंस्ट उन्होंने पुलिस वालों FIR दर्ज की गई सी। उस FIR के फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने वास्ते टीम गठित करके श्रीमती हरिता बांसल ड्रग इंस्पैक्टर फिरोजपुर ਅਤੇ श्री रमनदीप गुप्ता ड्रग इंस्पैक्टर मुक्तसर की ड्यूटी लाई गई सी। नाल ही उन्होंने नाल नायब तहसीलदार परमपाल सिंह जी सन साझे तौर पर इंस्पैक्शन करते हुए उत्थों 35,200 गोलियां टपेंटाडोल दियां जब्त की गई हैं ਅਤੇ नाल ही 4400 कैप्सूल प्रेगाबलिन 300 जब्त किए गए हैं। टपेंटाडोल टैबलेट रखने की वो कोई भी ऑथराइजेशन नहीं है मालक को। तो जी प्रेगाबलिन 300 है वो DC साहब के हुक्मां तहत फिरोजपुर जिले बंद की गई है जी। महकमे वालों इन्होंने खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दुकान को मौके पर सील कर दिता गया है। मालक फरार है पुलिस के दस्सण मुताबक। FIR उन्होंने वालों क्योंकि दर्ज की गई सी तो असी अगे सख्त एक्शन रिकमेंड करके इसनू मुकम्मल अंजाम तक पहुँचाऊँगे। सर असी रैगूलर मुहिम के तहत इंस्पैक्शनस कर रहे हैं। मानयोग DC साहब ने भी यो आदेश दिते कि सख्त हदायतां कीतियां ने कि रैगूलर इंस्पैक्शनस होंदियां रहणगियां, अगे भी करांगे टीम के नाल। तो जिथे भी कोई उनताई पाई जाएगी सख्त तो सख्त एक्शन लिया जाएगा तो जल्दी तुहानूं रिजल्ट भी देखने मिलेगा। सर जिन्ना दे भी लाइसेंस महकमे वालों रद्द किए जाते उन्होंने या उन्होंने किसी भी रिश्तेदार को ब्लड रिलेशन च असीं लाइसेंस नहीं जारी करते दोबारा चालू नहीं। तो हुण तक कोई हैगा कोई आंकड़ा सर 12 लाइसेंस 1/1/25 तो लैके हुण तक 12 लाइसेंस जिला फिरोजपुर दे विच नशा वेचण वालियां दे रद्द किए गए हैं। तो 1,32,00,000 रुपए दीयां दवाइयां हुण तक जब्त कीतियां गईयां। 19 सीजरां मतलब 19 जगह तो रिकवरी के फलसरूप 1,32,00,000 रुपए दीयां दवाइयां जब्त कीतियां गईयां। ये जड़ियां दवाइयां सर किहड़ियां सी पाबंदीशुदा सी पाबंदीशुदा दवाइयां जिहड़े नशे के तौर पर दुरवरतों जिन्हां दी त्योहारों के सीजन में चंडीगढ़ पुलिस ने नकली करेंसी की एक बड़ी खेप पकड़ी और इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अभी तक कुल 24,27,000 की नकली करेंसी बरामद हुई है। इसके अलावा गिरोह से प्रिंटर, स्याही कटर, सुरक्षा थ्रेड वाला कागज और 2 गाड़ियां भी जब्त की गई। दरअसल पिछले दिनों चंडीगढ़ में 10 लाख की नकली करेंसी की डिलीवरी देने आए गौरव और विक्रम नाम के युवकों को एक गुप्त सूचना के आधार पर चंडीगढ़ पुलिस ने काबू किया था। इन दोनों से हुई पूछताछ के आधार पर राजस्थान के झालावाड़ में जितेंद्र नाम के व्यक्ति का पता चला जो अपने घर पर फेक करेंसी छापने का काम कर रहा था। पुलिस ने झालावाड़ से जितेंद्र को काबू किया और करेंसी छपाई में इस्तेमाल हो रहे उपकरण भी बरामद किए। और अधिक जानकारी देते हुए SP क्राइम जसवीर सिंह ने बताया कि इस धंधे की शुरुआत मध्य प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति प्रमोद काकरे से हुई थी जो मध्य प्रदेश में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
जबकि राजस्थान में इन नोटों की छपाई करने वाला जतेंद्र एक बिजनेसमैन है जो बिजनेस में घाटा होने पर इस धंधे में शामिल हुआ। उन्होंने बताया कि गिरोह का नेटवर्क चंडीगढ़ के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था। गौरव और विक्रम नाम के दो लड़के हैं जो कि फेक करेंसी सर्कुलेट करने का काम कर रहे हैं और दिनांक 25 सितंबर 2025 को ये दोनों चंडीगढ़ में फेक करेंसी को डिलीवर करने आए थे। जब पुलिस टीम ने उनके ऊपर सर्विलेंस लगाई और उनको एप्रीहेंड किया तो उनके पास से चंडीगढ़ पुलिस को फेक करेंसी रिकवर हुई, जो दोनों को अलग अलग व्हीकल में और दोनों के पोजेशन से लगभग 10 लाख रुपए की करेंसी जो है वो रिकवर की। उसके बाद इसमें केस रजिस्टर किया गया, जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो भी सेक्शंस थे उसमें हमने एफआईआर को रजिस्टर किया। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इनको कोर्ट में पेश करने पर रिमांड लिया। इंटेरोगेशन के दौरान इन्होंने आगे का नेटवर्क बताया। इन्होंने बताया कि कैसे ये इस पूरे नेटवर्क को चला रहे थे। तो उसमें इन्होंने बताया कि पहले ये एक दूसरे से संपर्क में आए और नंबर वगैरह एक्सचेंज हुए और फिर फेक करेंसी इन्होंने मंगवाई। फेक करेंसी मंगवाने के बाद इन्होंने आगे कस्टमर्स को ढूंढना शुरू किया। तो इन्होंने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के थ्रू अपने इस नेटवर्क को बढ़ाया। उस पर इन्होंने अपने करेंसी नोट्स की पिक्चर्स लगाई और वहाँ पे इन्होंने कस्टमर्स को एल्यूर किया कि आप हमारे से फेक करेंसी नोट खरीदें। तो जो इनका इनिशियल स्टार्ट हुआ था वो 1 लाख रुपए ओरिजिनल करेंसी पर 3 लाख रुपए की ये फेक करेंसी इनको मिलती थी और आगे ये उसको 4 लाख रुपए या जैसा भी कस्टमर मिलता था उस हिसाब से इसको ये बेच देते थे। तो उस तरीके से जो अमाउंट कम करके ये बेचते थे उसमें इनका प्रॉफिट मार्जिन इन्वॉल्व होता था। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला में प्रतिमा विसर्जित करने गए 12 बच्चों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली चंबल नदी में गिर गई, जिसमें पीर झालर के 2 बच्चों की मौत हो गई और 9 बच्चों को ग्रामीणों ने बचा लिया, जबकि एक लापता है। एसडीआरएफ उसकी तलाश कर रही है। हादसे से पहले का वीडियो भी वायरल हुआ है। इसमें बच्चों की खुशियां दिख रही हैं। वे ढोल बजाते, गुलाल उड़ाते नजर आ रहे हैं, लेकिन पल भर में ही हादसे ने खुशियां ली। दरअसल 12 बच्चे ट्रैक्टर से उज्जैन के नरसिंगा पुल पर विसर्जन को गए थे। ड्राइवर पुल पर आरती करने उतरा। इसी बीच किसी बच्चे ने ट्रैक्टर की चाबी घुमा दी, जिससे वह चालू होकर आगे बढ़ गया और मूर्तियों से लदी ट्रॉली पुल से फिसलकर नदी में जा गिरी। उसमें सवार लोग भी पानी में गिर गए। बच्चों की चीख सुन ग्रामीणों ने छलांग लगाई और रेस्क्यू किया। तो वहीं पुलिस और राज्य आपदा आपातकालीन प्रतिक्रिया बल की टीम स्थानीय निवासियों की मदद से बचाव अभियान में जुट गई। दिल्ली में आज भी मुठभेड़ हुई है। स्पेशल सेल की टीम ने शुक्रवार सुबह कापसहेड़ा में हुई मुठभेड़ में आकाश राजपूत को पैर में गोली लगी, जिसके बाद उससे काबू किया गया। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दोनों अपराधियों से पूछताछ जारी है और पुलिस विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आकाश राजपूत निवासी श्री गंगानगर राजस्थान और महिपाल निवासी भरतपुर राजस्थान के रूप में हुई है। सूत्रों के अनुसार आकाश राजपूत पर राजस्थान पुलिस ने 20,000 रुपयों का इनाम भी घोषित कर रखा था। जानकारी के अनुसार आकाश राजपूत वांछित गैंगस्टरों जगदीश जागला और अभिषेक गौड़ के जरिए रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और वीरेंद्र चारण से जुड़ चुका था। भारत से विदेश भागने के लिए फर्जी पासपोर्ट बनवाने की तैयारी में था। इसी तरह महिपाल भी असंध गोलीकांड में जेल गया था और बाद में बेल पर छूटने के बाद आकाश के साथ मिलकर विदेश बैठे गैंगस्टरों से जुड़ गया था। अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सीमा सुरक्षा बल को पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक गाड़ियां भेंट की गई। ये कार्यक्रम भारत और पाकिस्तान के बीच रोजाना होने वाली बीटिंग
रिट्रीट परेड स्थल अटारी वाघा बॉर्डर पर आयोजित हुआ, जहां हर दिन हजारों देशभक्त दर्शक बड़ी संख्या में आते हैं। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और महिलाओं को परेड स्थल पर आरामदायक और सुलभ आवागमन में सहायता करेंगी। ये पहल बैंक की सामाजिक सेवा, राष्ट्र प्रेम और सभी को समान सुविधा देने की भावना को दर्शाती है। इसी अवसर पर SS चंदेल, DIG BSF कृष्ण शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक SBI चंडीगढ़ सर्कल बम शंकर मिश्रा, उप महाप्रबंधक प्रशासनिक कार्यालय लुधियाना और सतविंदर सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक अमृतसर की गरिमामयी उपस्थिति रही। इसके साथ ही BSF और SBI के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस को समर्पित पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह डैनी के नेतृत्व में जालंधर जिला के नकोदर शहर से शुरू हुई शोभा यात्रा जंडियाला गुरु पहुंची, जहां लोगों ने इसका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस पावन अवसर पर लोगों ने आतिशबाजी की और पालकी में विराजमान भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। ये शोभा यात्रा नकोदर से शुरू होकर विभिन्न पड़ावों से होते हुए जंडियाला गुरु पहुंची, जिसके बाद भगवान वाल्मीकि जी के राम तीर्थ मंदिर में ये संपन्न होगी। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह डैनी ने संगत को बधाई देते हुए कहा कि भगवान वाल्मीकि जी महाराज पंजाब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और पंजाब को उन्नति, विकास और खुशहाली की राह पर ले जाएं। इस अवसर पर सरबजीत सिंह सोनू, जंडियाला पार्षद चरणजीत सिंह टीटू, सरपंच जगजीत सिंह जोगी, निर्मल सिंह निम्मा के अलावा सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता और असंख्य संगत भी उपस्थित रही। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। ਅੱਜ बहुत ही खुशी ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ, ਸ਼ਰਧਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਪਿਆਰ, ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਮਹਰਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਸ਼ੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਵਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਔਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਨੀ ਮੰਡਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੀ ਆ ਔਰ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟਾਂਗਰਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਮੱਲੀਆਂ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹੁਣ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਨੀ ਬੰਡਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਆ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਰ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਉਹ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਚਾਅ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਡਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਡਟੇ ਪਏ। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन T4 पटेल चौक और बस्तियात सब डिवीज़न आदर्श नगर कार्यालय में सभी कर्मचारियों के सहयोग से भगवान वाल्मीकि जी के प्रकाश उत्सव के अवसर पर विशाल लंगर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भगवान वाल्मीकि आश्रम शक्ति नगर के प्रधान विपिन सब्रवाल ने मुख्य मेहमान के तौर पर शामिल होकर इस लंगर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एक्सीएन सनी भांगरा, प्रधान रविपाल, अजयपाल वाल्मीकि, एसडीओ नवीन भगत, एसडीओ सुरजीत सिंह, कार्तिक सोहता, प्रद्युम्न शर्मा, पेशराज, सोमराज सहित सभी सदस्यगण उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। देखो प्रभु पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी का ਜਿਹੜਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਿੱਛੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮੰਦਿਰ ਆਲੀ ਮੱਲਾ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ 713 ਬੱਸਾਂ ਔਰ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵਾ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਤੀਰੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਨਵੀਨ ਭਗਤ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਉਤਸਵ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟੇਲ ਚੌਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਅਵਸਰ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਉਤਸਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਪਨ ਸਬਰਵਾਲ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪਨ ਸਬਰਵਾਲ ਜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਤਕੀ ਵੀ 800 ਪਲੱਸ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਵਧੀਆ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਵਯ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਵਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪਟੇਲ ਚੌਂਕ ਸਾਊਥ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। असत्य पर सत्य की जीत और अहंकार और बुराई के नाश का प्रतीक पर्व विजयदशमी श्री महाकाली मंदिर दशहरा कमेटी की ओर से साइंदा स्कूल पटेल चौक की ग्राउंड में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आए हुए गणमान्य व्यक्तियों ने रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन कर सभी को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। अंत में जय श्री राम के उद्घोष ने वातावरण को भक्तिमय रूप प्रदान किया। इस दौरान आतिशबाजियां सभी के आकर्षण का केंद्र रहीं। इस अवसर पर प्रधान तरसेम कपूर ने सभी शहरवासियों को दशहरा पर्व की बधाई दी। मां भगवती सेवा संघ की तरफ से गुरु गोविंद सिंह एवेन्यू में दशहरा पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना के साथ की गई। इस दौरान भगवान श्री राम, भाई लक्ष्मण और वानर सेना सहित और रावण अपने भाइयों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ दशहरा मैदान में पहुंचे। इस दौरान भक्तों ने भगवान श्री राम का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया, तो वहीं दोनों सेना में युद्ध हुआ जिसमें भगवान श्री राम विजयी रहे। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, पूर्व मेयर राकेश राठौर, बलराज गुप्ता, किशन लाल शर्मा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों का दहन किया। इस अवसर पर अजमेर बादल, अशोक सरीन, विनीत शर्मा, चंद्र भनोट, सरवन कुमार शर्मा, विवेक खन्ना, राजेश गुलाटी, जगदीश चंद्र, आशीष भंडारी सहित अन्य सदस्यगण भी उपस्थित रहे। विवेक खन्ना अहंकारी रावण का मां भारती सेवा संघ परिवार ਵੱਲੋਂ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਵੀਨਿਊ ਕੇਂਦਰੀ ਸਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 13ਵਾਂ ਦਸ਼ਹਿਰਾ ਉਤਸਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਉਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं तो हम दी लड़ाई क्योंकि रावण हमेशा मैं दी गल करता सी और प्रभु राम हमेशा ही बानर रिच विभिन्न वर्गां नूं लैके उन्होंने एक समाज नूं संदेश देने का प्रयास किया कि जो लड़ाई जिहड़ी है वो असी हम बन के लड़ सकते हैं, वो मैं बन के नहीं लड़ी जा सकती। अहंकार का प्रतीक रावण, अधर्म और धर्म की लड़ाई दे विच धर्म की विजय का प्रतीक दशहरा अज असी इस प्रांगण दे विच मना रहे हैं। मैं इस उत्सव से सारे ही शहर वासियों को बहुत बहुत बधाई देना तो उम्मीद करदा कि जिहड़ा संदेश प्रभु राम ने सानू दिता है असी उहदे ते उतरांगे और अपना जीवन जिहड़ा वै वो थोड़ा जिहा प्रयास करांगे राममय बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 13वां दशहरा है और पिछले 12 साल तो असी ये दशहरा जिहड़ा मना रहे हैं और मां भारती सेवा संघ परिवार जिहड़ा सारे मैंबर एक परिवारिक रूप और सारी कलोनी एक परिवार के नाते असी ये कार्यक्रम मनाते हैं। मां भारती सेवा संघ बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक सवेरा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्राचीन शिव शक्ति मां बंगला मुखी मंदिर दिलबाग नगर एक्सटेंशन 120 फुटी रोड जालंधर में अहंकार और बुराई के नाश का प्रतीक पर्व विजयदशमी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हैप्पी बाबा और मंदिर के प्रधान प्रवीण कत्याल सोनू ने रावण के पुतले को अग्नि भेंट कर बुराई की हार और अच्छाई की जीत का संदेश दिया और सभी को दशहरा पर्व की बधाई भी दी। इस दौरान मंदिर कमेटी की ओर से जलेबियों का लंगर लगाया गया। इस अवसर पर विकी विज, केशव कत्याल, अजय नारंग, बब्बा अंगुराल, चंदर नरूला, दविंदर सिंह देओल, दिलजोत सिंह, सुनील कत्याल, विवेक सूरी, राजेश मनचंदा, राजेंद्र अग्निहोत्री, राकेश अंगुराल, मोनू तुली, सतीश कुमार, शौर्य विजय, अभिषेक, जीएस नंदा, गीतिका कत्याल, पूजा लूथरा, पूजा तनेजा, पूजा बहल, रमा जैरत, अंजलि नारंग, शशि चौहान, रश्मि अग्निहोत्री,
सुखबीर चट्ठा, रेखा बबली, सुनीता मनचंदा, संतोष शर्मा, ठाकुर माया, अनु, सुनील आचार्य सहित असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। मंदिर श्री बजरंग भवन प्रबंधक कमेटी जालंधर छावनी की ओर से शारदीय नवरात्रों के उपलक्ष्य में माता की चौकी का आयोजन बड़ी ही धूमधाम और श्रद्धा भाव के साथ किया गया, जिसमें भजन गायक सुमित रानू ने अपनी मधुर स्वर लहरियों के माध्यम से माता की भेंटों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर ब्रिगेडियर सुनील कुमार सोल और कैंट बोर्ड के सीईओ ओमपाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इनके अलावा सिविल मेंबर महेश गुप्ता, पुनीत शुक्ला, दीपक सहगल, संजीव सहगल सहित प्रधान भूषण अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, मुनीश अग्रवाल, विकास अग्रवाल, अशोक शर्मा, दीपक सहगल, महेश गुप्ता, पुनीत शुक्ला, सागर, मनोज चोपड़ा, गुरुदत्त काला, अश्विनी जैन, साहिल और रोबिन कनौजिया सहित बड़ी संख्या में मां भक्तों ने अपनी हाजिरी लगाई। माता की चौकी में आए हुए गणमान्यों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया गया, तो वहीं प्रसाद रूपी लंगर भक्तों में वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जावा नाल नाल मेरे जिथे जावा नाल नाल
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। बरनाला में दशहरा मेले में दो पक्षों में हुई खूनी झड़प, एक युवक की बेरहमी से की हत्या। फिरोजपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर 3 मेडिकल स्टोर किए सील, 8 लाख प्रतिबंधित गोलियां की बरामद। चंडीगढ़ पुलिस ने फर्जी करेंसी गिरोह का किया पर्दाफाश, 24 लाख रुपयों के नकली नोट किए बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।